يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین عزیز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ 24 اکتوبر 2014 کی شام نور اسلام میں محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کے ساتھ سیف الرحمان حاضر خدمت ہے. سامعین، آج مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہم نے ایک سال کو الوداع کہا اور نئے سال کو خوش آمدید کہا. سن 1435 ہجری اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور 1436 ہجری کا آغاز ہو گیا. ہماری اس موقع پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو جو گزشتہ سال 1435 ہجری کے دوران دنیا سے چلے گئے، اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے، ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے ان مسلمانوں میں شامل فرمائے، ان مومنین میں شامل فرمائے، ان صالحین میں شامل فرمائے جو اللہ کے مقرب بندوں میں ہیں. اور ہمیں جو ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، اگلے سال کے دوران ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور امت اسلامیہ کی حد تک جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اپنوں اور غیروں کے ظلم کے شکار ہیں، ان کے اس ظلم کا خاتمہ ہو اور وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں، اور اس سال کو ان کے لیے برکت کا سال بنائے، نجات کا سال بنائے، کامیابی کا سال بنائے. یہ اور اس طرح کی بہت سی دعاؤں اور تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اور ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. پھر دوسرے مرحلے میں فیس بک اور فیکس کے ذریعے آنے والے سوالات پروگرام کا حصہ بنیں گے. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حق نواز بول رہا ہوں. جی حق نواز صاحب، کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں ہندوستان کشمیر سے میرا تعلق ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی آدمی نے یہ سوال پوچھا تھا میرے سے کہ میرا کچھ بینک بیلنس ہے تقریباً 60,000 روپیہ، اس کا زکوٰۃ سال بھر کا دینا پڑے گا یا نہیں؟
अच्छी बात है। और वो जब आप साल में एक दिन होता है ना, या कोई एक वक्त होता है जिसमें आप ज़कात निकालते हैं, तो उस वक्त वो रकम होती है या नहीं? नहीं, वो कुछ किसी के पास फिक्स रेट पे रखा गया है, जैसे बैंकों में पैसे रखे जाते हैं सर, ऐसे ही। चलिए, आपने जो रखे वो एक अलग मसला होगा कि रखा या उसका वो सही किया या नहीं, लेकिन वो रकम होती है, यानी जब आप ज़कात अदा कर रहे होते हैं उस वक्त वो रकम मौजूद होती है ना? हाँ, वो उसको साल भर में यूज में नहीं लाया, यानी कि वो पैसे बचे हैं साल भर के। जी इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको हिदायत पर रखे। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। जी जी मौलाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई आपने जब गुज़िश्ता साल के गुजर जाने के बारे में और नए साल की आमद पर जो पैगाम पेश किया है, बहुत ही बेहतरीन पैगाम है, और तमाम भाई और बहनें हमारी जो भी हैं सबको चाहिए कि इस सिलसिले में गौर करें। और आखिर में जो आपने फरमाया कि अल्लाह अपनी रज़ामंदी के अमाल की तौफीक दे और नाराज़ करने वाले कामों से हमें बचा के रखे। इस मौके पर हमारे साहब वो हदीस, उस हदीस की याद ताज़ा होती है जिसमें जो मुस्लिम शरीफ में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते, हदीस क़ुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमा रहा है, या इबादी इन्नमा है आमालुकुम उहसीहा लकुम फमन वजद खैरन फलिहमदिल्लाह वमन वजद गैर ज़ालिक फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु। ये सब तुम्हारे आमाल हैं और इनको मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, और इन आमाल के नतीजे में तुम्हें भलाई हासिल हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और इन आमाल के नतीजे में अगर तुम्हें सज़ा मिले तो ऐसी सूरत में तुम अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय ख़ुद अपने आप पर मलामत करो। तो एक साल जो गुज़रा है उसमें क्या खोया और क्या पाया, इसका मुहासबा, हम अपना मुहासबा इस बारे में करें। अपने लिए और उम्मत के लिए और मिल्लत के लिए हमने कितना फ़ायदा पहुँचाया और कितना नुकसान किया। अगर फ़ायदा पहुँचाया तो मज़ीद फ़ायदे पे तवज्जो दें, और अगर नुकसान किया है तो फिर उसकी तलाफ़ी करें कि आइंदा ये नुकसान ना होने पाए। तो आइंदा जो ज़िंदगी है, अब पता नहीं है कि ये साल, इस साल का कैलेंडर किसकी ज़िंदगी में मुकम्मल होगा और किसकी ज़िंदगी इस कैलेंडर के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी का सही फ़ायदा उठाएँ। जी साहब भाई, ये तो हो गई मुख्तसर सी तमहीदी बातें। और उसके बाद मौसूफ़ जो ज़कात के सिलसिले में सवाल मौसूफ़ का है, ज़कात जो अरकान इस्लाम में शामिल है, साल में एक बार मुसलमानों पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जबकि आपके पास माल हो और वो माल आपकी मिल्कियत में हो, आप उस माल के मालिक हों और वो माल जो है निसाब को पहुँचे। तो ये जो शराइत हैं, अगर वो शराइत इस माल में पाई जाती हैं, आपने 60,000 अपने मुल्क की करेंसी आपने पेश की, तो 60,000 रुपये से भाई मेरे ख्याल में 7.5 तोले सोने से बहुत ही कम है। आज के दौर में 7.5 तोले सोना जो होता है वो 60,000 रुपये से बहुत ज़्यादा होता है। वो रकम जो 60,000 रुपये आपके पास है और मज़ीद जो भी रक़ूमात आपके पास हैं और आपके घर में ख़वातीन के पास सोना वग़ैरह है, ज़ेवरात मसलन, इन तमाम जो मालियत की चीज़ें हैं इन सब को आप जोड़ें। उसके बाद मुकम्मल रकम आप देखें, अगर वो रकम या जो भी सामान है, ज़ेवरात वग़ैरह, उन सब की कुल कीमत 7.5 तोला सोने को पहुँचती है या उससे ज़्यादा, तो मुकम्मल रकम के ऊपर, मुकम्मल मालियत के ऊपर 2.5% के हिसाब से आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। आपसे साहब भाई ने जब पूछा कि एक तारीख़ आप ज़कात की अदायगी के लिए मुकर्रर करते हैं, आमतौर पर सहूलत के लिए लोग माह रमज़ान की कोई तारीख़ फ़िक्स करते हैं ताकि ज़कात की अदायगी के हिसाब में आसानी होती है, या तो आप पहली तारीख़ या 10वीं तारीख़ या आखिरी अशरा जो फजीलत वाला अशरा होता है, तो एक तारीख़ मुकर्रर कर लें और उस तारीख़ में जो भी रकम आपके पास जमा होती है उन तमाम रक़ूमात और सोने को आप उसका हिसाब लगाकर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम और सवाल बता दें भाई। मेरा नाम माइनुद्दीन है, बांग्लादेश का। सवाल क्या है? सवाल ये है, हम आपसे 1 साल पहले दुबई में था। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त दुबई से हम मुल्क जाने का टाइम 2 मोबाइल दिया हमको।
और उसका घर वाला का एक टेलीफोन नंबर दिया, ये नंबर में फोन करो और घर वाला का पता करो और किधर एड्रेस वो बताएगा, उधर जाके पूछो। लेकिन हम लोग जाने के बाद हमारा मोबाइल चोरी हो गया था। अभी वो उसका घर में मोबाइल नहीं पहुंचा हम। मोबाइल का कीमत तकरीबन 500-600 रियल ऐसा होएगा। तो हम 2 महीना 3 महीना बाद मुल्क से कतर में आ गया और दोनों मोबाइल हमारा घर में छोड़ता है, लेकिन घर वाला वो लोग का एड्रेस नहीं है, इसलिए मोबाइल नहीं पहुंचाया। अभी इसके लिए हम क्या कर सकता है? ये दोनों मोबाइल अभी हमारा घर में है, इस्तेमाल कर रहा है लोग, लेकिन जिसका अमानत हो घर में तो हम नहीं पहुंचाया। तो जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपको मोबाइल दिए थे, उनसे आपका कोई राब्ता है? उसका हम बहुत कोशिश किया दुबई में उसके साथ बात करने के लिए, लेकिन नहीं मिला। अभी उसका नंबर भी नहीं है और उसका घर वाला का नंबर भी नहीं है। कैसे अभी पहुंचाएगा? वो भी तकरीबन 1 साल होने वाला है, 1 साल हो गया ऐसा है। मोबाइल का कीमत होगा 600 रियल ऐसा है दोनों का। अभी इसके लिए कुछ कर सकते हैं हम यानी। अच्छी बात है। और कोई सवाल है मोइन भाई? नहीं, बस ये है। अच्छी बात। ओके, फी अल्लाह जी। जी बोलना कुछ जवाब। जिससे भाई इस सिलसिले में अल्लाह ताला का जो इरशाद है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल, कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों की जो अमानतें हैं, जो साहिब अमानत है, उनके पास वो अमानतें पहुंचा दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक वो साहिब अमानत आपको हिबे के तौर पे वो चीज़ न दे दे, आप उसे अपनी चीज़ नहीं समझ सकते और अपनी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूँकि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, आपने जिम्मेदारी ली, तो आपको चाहिए कि वो चीज़ जिनके पास पहुँचाना है वो पहुँचाए। लेकिन किसी उज़र की वजह से वो चीज़ नहीं पहुँचाई गई, ऐसी सूरत में अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो साहिब अमानत है उनका पता तलाश करें। और एहतियातन से आमतौर पर ऐसी परेशानियाँ कई लोगों को लाहिक होती हैं। कोई चीज़, कोई सामान लोग देते हैं या कर्ज लेते देते हैं, फिर उसके बाद सही पता लेना और देना भूल जाते हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर नहीं बल्कि 2-3 नंबर वगैरह जो हैं आप लिखवाएं। जब किसी से कुछ चीज़ लेते हैं, देते हैं, तो जिस मुल्क में आप रहते हैं, अजनबी मुल्क में, और आपका जो मुल्क है असल वतन, तो वहाँ के कुछ अफराद इस तरीके से 2-3 नंबरात यहाँ के, 2-3 नंबरात वहाँ के लेके आप रखें, ताकि आइंदा ऐसी परेशानियाँ लाहिक न हो। फिलहाल जो मामला आप मौसूफ के साथ पेश आया, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि आप चूँकि वो मोबाइल्स आपके घर पे हैं, आपके पास मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो शख्स आपके हवाले वो अमानत जिसने दी है उसके बारे में पता आपके पास नहीं है, तो ये एहतियात ही इस बारे में हो सकता है कि आप उन मोबाइल्स की रकम जिस वक्त आपको मोबाइल्स दिए गए उस वक्त क्या हो सकती थी उसका अंदाज़ा लगाएं और मज़ीद इंतज़ार करें, तलाश करते रहें, और आखिरकार कोई भी पता न मिले तो उतनी रकम जो है आप उनकी तरफ से किसी बेहतर से बेहतर मोहताज के पास सदक़े के तौर पर पहुँचाएँ, और ये सदक़ा उनकी तरफ से नियाबत के तौर पर नियत करते हुए आप करें। इन तमाम नेकियों और कोशिशों के बाद आगे चलकर आइंदा कभी वो साहब अगर आपको मिल जाते हैं, अपनी अमानत का मुतालबा करते हैं, आप उनके सामने बात पेश करें, मैंने तलाश किया, आप मुझे नहीं मिले, मैंने आपकी तरफ से सदक़ा किया, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं अमानत आपको दे दूंगा, और आप इसी पर राज़ी हैं कि आपकी तरफ से उसकी खैरात हो गई उतनी रकम की, तो फिर जो है आप इस खैरात को अपनी तरफ से आप मान कर आप मुझे माजूर समझे, तो ये दोनों रास्ते आपके सामने मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और मोइन भाई, एक और पहलू भी जहन में आ रहा है, वो ये कि आप 1 साल की मुद्दत बता रहे हैं, तो 1 साल में एक आध मरतबा या 3-4 मरतबा टेलीफोन पर करने की कोशिश की, वो नहीं मिले साहब, तो उसके बाद फिर खामोश हो जाना, ये सही नहीं था। अब भी आप ज़रा देखिए कि आपके और कोई जानने वाले वहाँ मौजूद होंगे, उनसे क्या हो, वो आदमी है ना, वो फ़लाँ नाम का, वो मेरे साथ होता था, वो फ़लाँ जगह, ज़रा उसका कोई नंबर वगैरह तो ज़रा मुझे कुछ ढूंढ के ज़रा बता दो। किसी ज़रिए से उस तक पहुंचने की कोशिश करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने एक अमानत ली थी, वो अमानत आप उसको अदा नहीं कर सके हैं, तो अब उस पर एक आधा फ़ोन काफ़ी नहीं है, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इस पहला काम तो आप ये कीजिए, और दूसरा, अगर वो जो टेलीफोन है वो अगर आप उसकी कीमत ऐसी अंदाज़ा नहीं इस वक्त देखिए कि वो
किस कंपनी के हैं, किस मॉडल के हैं, किस उसकी कितनी पावर है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मालूमात जब आप लेंगे तो आप उसमें देखिए कि उसकी कितनी कीमत बनती है. या तो आप उतनी कीमत अलग करके घर वालों को कहते ठीक है आप इस्तेमाल करते रहे, मैंने वो रकम अलग रख ली है और जब मैं अगली दफ़ा बांग्लादेश आऊँगा तो फिर मैं वो मोबाइल वो ख़रीद के लेता आऊँगा और उनके घर तक पहुँचा दूँगा. क्योंकि आप मोबाइल पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है. उसमें अब ठीक है मोबाइल चोरी हो गया लेकिन ज़िम्मेदारी आप ही की रहेगी. वो वक्त गुजरने के साथ या उसके राब्ता ना होने की बिना पर वो ख़त्म नहीं हो जाएगी वो ज़िम्मेदारी. इस चीज़ को ज़रा ज़रूर ख्याल रखिएगा. जी सही भाई. जज़ाकुमुल्लाह खैर. मौलाना अगली कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और मौलाना साहब को भी मेरा सलाम. अजहर अली बोल रहा हूँ साहब. वालेकुम अस्सलाम. जी अजहर भाई सवाल क्या है? जी सैफुर रहमान साहब, ये व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज आ रहे दोस्त वगैरह भेजते हैं कि जैसा कि सूरह है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. तो ये आप जो है 10 लोगों को फॉरवर्ड करो ये बोल के बोले और उसके बाद आपको खुशियाँ आएंगे, घर में जो है खुशियाँ आएंगे. और अगर ये फॉरवर्ड नहीं करे तो तुम्हारे को जो भी है मतलब कि तुम ऐसा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बोल के आ रहा. तो ये सही है क्या सैफुर रहमान साहब? इंशाल्लाह अभी जवाब आ जाएगा इसका भाई. और मेरा एक ही सवाल है साहब. इंशाल्लाह. फिर बहुत शुक्रिया आपका. अभी जवाब आता है. जी बोलना. जी साहब इसमें कोई शक नहीं कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह. सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन की तमाम तालीमात और पैगामात को आम करने का और फैलाने का हुक्म दिया और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबे कराम को और उम्मत मुहम्मदिया को यह हुक्म देते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया अला फलिबल्लिग शाहिदुल गायब. इसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने दीन का पैगाम पहुँचाने के बारे में झूठ का सहारा लेने से मना किया और सूरह आराफ में मज़कूर है वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून. अल्लाह ताला ने जिन ख़तरनाक गुनाहों को हराम करार दिया उनमें से एक बात यह भी है कि तुम अल्लाह ताला की तरफ ऐसी बात मंसूब करो जो अल्लाह ताला ने नहीं बताई है. उसी तरह बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से मरवी है प्यारे नबी की तरफ से एक तंबीह है कि वमन कतबा अलैया मुतअम्मिदन फलतबव्वा मक़अदहु मिनन नार. अगर कोई शख्स अपनी तरफ से बात बनाकर मेरा नाम लेकर उस बात को लोगों के सामने पेश करता है उसे चाहिए कि जहन्नम की आग में अपना ठिकाना बना ले. तो बेशक कुरानी आयत की फजीलत अपनी जगह मुकर्रर है, हम उनको मानते हैं. जो अहादीस सही हैं तो वो अहादीस काबिल तस्दीक और काबिल अमल हैं और जो रिवायात इस सिलसिले में ज़ईफ़ या मौज़ू या मुनकर हैं उसके बारे में हम तरद्दुद करते हैं, उनकी तस्दीक नहीं करते, उन पर अमल करना ये पसंदीदा नहीं है. जहाँ तक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी फजीलत है कि दुआउल मकरूब यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी और अगर कोई शख्स परेशान हाल हो तो ये दुआ पढ़कर मज़ीद अपनी कोई दुआएं अल्लाह के दरबार में पेश करता है तो ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दुआएं कबूल हों. ये फजीलत अपनी जगह है. लेकिन उसके लिए कहना कि ये ऐसी दुआओं को फैलाने से आपको इतने फ़ायदे होंगे या अगर न फैलाएं तो इतना नुकसान होगा, तो ये तरीक़ा अलगाया ला तुबर्रिरुल वसीला कि आपका मकसद हो सकता है अच्छा हो लेकिन अच्छे मकसद के लिए गलत रास्ता अपनाना इस्लामी शरीयत में जायज़ नहीं है. तो जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो गलत रास्ता अपना रहे हैं. ये इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़. ऐसे लोगों की बातों के पीछे आप न जाएं और जो फजीलत वाकई कुरान से और हदीस से साबित है उस पर आप अमल करें. उसके लिए इस तरह के जो टेढ़े रास्ते हैं उनको अपनाने की ज़रूरत नहीं है. इसकी वजह से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही फैलने का अंदेशा है. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अगली कॉल लेने से पहले मौलाना यहाँ एक बहुत अच्छी आयत जिसका उनको इंतखाब हुआ, बस उसमें जो गलती है वो सवाब व इक़ाब की शर्त साथ लगा दी गई कि ये करोगे तो ये सवाब मिलेगा, इतना खुशियाँ मिलेंगी और अगर नहीं करोगे तो ये सज़ा मिल जाएगी. ये बात गलत है. ये अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाई है. लेकिन अगर आप उसको काट के सिर्फ ये दुआ, अगर आप सही हदीस में देख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में क्या फरमाया है, उस हदीस का मतन आप किसी को मैसेज करना चाहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पर आपको अजर अता फरमाएगा. लेकिन ये ना कि अगर मैं भेजूंगा तो मेरे घर में ये खुशी आएगी, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है. जी साहब भाई. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अगली कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाम और सवाल बता दें भाई. मैं अली हुसैन सर.
अली भाई क्या सवाल है? सवाल थोड़ा लंबा है सर, मैं बता सकता हूँ अगर लंबा, ज्यादा लंबा नहीं है, यानी कि हम लोगों का, हमारा बाबा जो था, हमारा बाबा ने हम लोगों का इमाम के बारे में बताया था। छोटा जब हम बच्चा था उसको वो बोलता था कि तुम लोगों का इमाम जो है वो आला हजरत है, ठीक है ना? अच्छा, तो आला हजरत है, और वो सऊदी में पहले मक्का में एक बार नमाज होता था, वो आला हजरत जिसको बोलता है, वो जाके सऊदी में 5 बार या कितना बार वो नमाज करवाया, ऐसा बात मेरा बाबा मुझे बोला था। अच्छा। और उसके बाद में मैं एक न्यूज सुना जिसमें जर्गिस नाम करके एक मोतवा है, वो मालूम नहीं कौन सा मुल्क है, मुमकिन इंडिया का है, वो आला हजरत का कोई जो हदीस है वो बता रहा था उसमें कि वो अल्लाह के साथ में गया और अल्लाह का पैर फिसल गया, ऐसी सी बातें वो सुना रहा था। जी अली सर बात सुन लीजिए, अली हुसैन भाई, हम आपकी बात को समझ गए हैं, अब आप जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आपके इससे ज्यादा और जो बात बताएंगे ना तो ये सारे इसी तरह के बतंगड़ी होंगे जो उन्होंने बयान किए हैं, इसलिए यही बात है ना कि हमारे कहने का मतलब हमारा इमाम तो इस दुनिया में नहीं है सर, सुन लीजिए ना थोड़ा। नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं सुन सकता, इसलिए कि ये सारी बातें जो हैं वो बतंगड़ हैं, बतंगड़ों को और ज्यादा आम नहीं करना चाहते हम। इसका भी जवाब दे देते हैं आपको, अब इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान हो जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब आपका। जी मौलाना। जी साहब भाई, जहाँ तक जो उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है, उनको दोबारा अल्लाह और रसूल की तालीमात की तरफ वापस आना चाहिए। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नती, मुस्तदरक हाकिम वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों सहारे उम्मत मुहम्मदिया के लिए और सारी इंसानियत की हिदायत के लिए दो सहारे छोड़कर जो आप वापस तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे नंबर पर अहादीस सहीहा, इन दोनों जो मसादिर हैं, इन दोनों से दूर होने के नतीजे में ही, जैसे भाई साहब जो अजीब किस्म की बातें पेश कर रहे थे नौज़ बिल्लाह, तो ये जो मनगढ़ंत बातें हैं जिनसे सब हमेशा नफ़रत और नाराज़ रहते हैं, इन बातों से नफ़रत करते हैं, तो बेशक ये नफ़रत की ही बातें हैं। यानी इंसानों के बारे में गुलू करना, उनके बारे में अल्लाह ताला के मकाम पर उनको पहुँचा देना और ये कहना कि जो भी हम इन्हीं से, यानी अल्लाह को छोड़कर गैरों से ही ले लेंगे, तो ऐसे जो ख्यालात हैं ये गैरों के पास, शिरक करने वालों के पास तो पाए जाते हैं, लेकिन दीन इस्लाम दीन तौहीद है, और इस एतबार से हमें चाहिए कि जो भी मांगना है सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, और जो झूठी जो खुराफात की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी तालीमात हैं, और अगर हम इन तालीमात को हासिल करें, इनको समझें, इन पर अमल करें, इनको आम करें, तभी हमारी ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती। तो फिर इन खुराफात जो दूसरी तरफ गैर मुनासिब जो बातें हैं, उनके पीछे जाकर आप अपना वक्त ज़ाय न करें और अपने ईमान में खलल न आने दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अली हुसैन भाई, आप कुछ और बातें करना चाहते थे और मैंने आपको इसलिए रोका भाई कि ये जो आपने एक दो नाम लिए ना उसमें कि वो फलां साहब हैं, वो ये कहते हैं, और ये हमने सुना है, उनको भी सुना है, और आला हजरत के जो आला हजरत एक एहतराम का लफ्ज़ है, अब वो किस पर उसका इतलाक़ किया जाता है वो भी अंदाज़ा है कि वो किसी एक शख्सियत जिसके लिए वो आला हजरत के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर फलां को वो इमाम कह रहे हैं, इमाम का लफ्ज़ भी एहतराम, लेकिन किसी का एहतराम करना, हम उस वक्त हर उस शख्सियत का एहतराम करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमें तालीम देगा, उसका हम एहतराम करेंगे, यकीनन हमारे दिल में भी और हमारी ज़बानों पर भी उसका एहतराम होगा। लेकिन जो कहे कि भाई अब वो बातें अपनी तरफ मंसूब कर ले या अपने इमाम की तरफ मंसूब कर ले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई हैं, जो कि ये बताते हैं, दोनों नाम जो आपने बताए हैं ना, वो इस तरह की बातें बताते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ हैं, इसलिए हम इनकी बातों को मजीद नहीं सुनना चाहेंगे, हमें उससे बचना चाहिए ताकि हमारी आखिरत महफूज हो सके, वहां हम न पकड़े जाए। अच्छा तुम तो खुराफात में लगे हुए थे, हम खुराफात से बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि वो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, उनके फरामीन, उन पर हम अमल करने वाले बने, न कि दीन का नाम लेकर, दीन हर एक फर्द को पसंद होता है ना, अब दीन के नाम लेकर अपनी दुकानदारियां, अपनी ज़ात के लिए वो चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं, उनके कारोबार हैं, हम उनके कारोबार पर लानत भेजते हैं, हम उनके कारोबार के शरीक नहीं बनना चाहते।
उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं मोहम्मद सनीफ खान बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद भाई सनीफ जी, मेरा सवाल है कि तयम्मुम करने का सही तरीका और कब कर सकते हैं। अच्छी बात। और दूसरा सवाल है मुहर्रम का रोजा का फजीलत के बारे में थोड़ा। इंशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना, तयम्मुम का तरीका या तयम्मुम का तरीका। जी साहब भाई, बेशक अल्लाह ताला ने वज़ू का जो मुतबादिल तयम्मुम के बारे में बताया है। तयम्मुम उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे, तयम्मुम उस वक्त आप कर सकते हैं जबकि आपके पास पानी मुयस्सर न हो और नमाज का वक्त निकलने का अंदेशा हो, या पानी हो इतना ज़्यादा गर्म या इतना ज़्यादा ठंडा कि अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जान जाने का या आप बीमार हो जाने का अंदेशा हो, या फिर पानी इस ऐसे मकाम पर हो जहाँ पे जाने तक नमाज का वक्त निकल जाए, या पानी दुश्मन के पास हो, मिसाल के तौर पे पानी की कुएं के पास सांप बैठा हुआ हो या कोई दुश्मन हथियार लेकर बैठा हो। तो ऐसी कुछ शराइत हैं जिनकी वजह से आप वज़ू के बजाय मजबूरी की हालत में तयम्मुम कर सकते हैं, या एक कि पानी तो टॉयलेट में है, आप उठ ही नहीं सकते और आपका वज़ू करवाने वाला कोई नहीं है। ये तमाम मजबूरियाँ हैं जिनके नतीजे में आप वज़ू के बजाय तयम्मुम कर सकते हैं। और तयम्मुम के सिलसिले में जो अहादीस मरवी हैं उनका मुलख्खस ये है कि जो साफ़ मिट्टी होती है वहाँ पे आप जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद आप अपने दिल में तयम्मुम की नियत करें कि वज़ू के बदल आप तयम्मुम कर रहे हैं, और अपने दोनों हाथ आप ज़मीन पे एक दफ़ा मारें और उसके बाद उन दोनों हाथों से जो धूल है उनमें आप फूंक दें ताकि धूल चली जाए। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे पर एक दफ़ा मसह करें और फिर जो दोनों हथेलियाँ यानी दोनों हाथ कलाइयों तक सामने और पीछे दोनों हाथों को आप मसह कर लें। इस तरीके से आपका तयम्मुम, चाहे वज़ू आपका टूटा हुआ हो या आप पर गुस्ल फ़र्ज हुआ हो इह्तिलाम या मुबाशरत की वजह से, तो ये तयम्मुम दोनों इबादत के लिए, वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद आप जो भी इबादत करना चाहें, नमाज वगैरह अदा करना चाहें तो आप अदा कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और दूसरा सवाल था शनीफ हुआरी साहब का कि मुहर्रम के रोज़े की फजीलत। जी साहब, इसके बारे में इख्तिसार ने कहा जा सकता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा में थे तो आप देखते थे कि मक्के के जो मुशरिकीन थे वो भी मुहर्रम की 10 तारीख़ की ताज़ीम करते थे, और जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए तो प्यारे नबी ने देखा कि जो मदीने के अतराफ़ जो यहूदी बसते थे वो जो है मुहर्रम की 10 तारीख़ का रोज़ा रखते थे। तब प्यारे नबी ने उनसे पूछा कि ये रोज़ा तुम लोग क्यों रखते हो। उन्होंने बताया कि ये वही तारीख़ है जिस तारीख़ को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को समंदर पार करवाया और दूसरी जानिब फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन को समंदर के पानी में गर्क करके तबाह किया। उसके बाद समंदर पार करने के बाद हर साल मूसा अलैहिस्सलाम इस रोज़े को रखा करते थे और इस रोज़े के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तब प्यारे नबी ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि हम लोग इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पे अमल करें। उस साल प्यारे नबी ने माह मुहर्रम की 10 तारीख़ के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया और लोगों ने वो रोज़ा रखा। लेकिन उसके बाद जब शाबान का महीना आया तो अल्लाह ताला ने माह मुहर्रम के रोज़े की फ़र्जियत को मनसूख करके उसे सिर्फ सुन्नत का दर्जा दिया और उसके बाद माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए। तब नबी मुहतरम ने बताया कि माह मुहर्रम का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, अब उससे बेहतर रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ हुआ है, इसीलिए माह मुहर्रम का रोज़ा जो चाहे रखे और जो चाहे छोड़ दे। लेकिन चूंकि इसकी फजीलत आई है कि माह मुहर्रम का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इनाम बंदों को मिलेगा कि गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसीलिए हम इस रोज़े की पाबंदी करना ये ज़्यादा अफजल अमल है और सुन्नत है। और दूसरी जानिब जब सहाबा कराम ने गौर किया कि मुसलमान भी माह मुहर्रम की 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी रखते हैं, तो हम उनकी मुखालफत कैसे करें, तो ये बात नबी मुहतरम के पास पेश की गई। तो प्यारे नबी ने बताया कि ये प्यारे नबी की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लासुमन्नता से, अगर आने वाला साल भी मैं ज़िंदा रहूँ तो मैं 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा, यानी 10 तारीख़ का रोज़ा सुन्नत पर अमल के लिए और 9 तारीख़ का रोज़ा जो है यहूदियों की मुखालफत के लिए। इस एतबार से जो है जब भी मुहर्रम का महीना आए तो 9 और 10 इन दोनों तारीख़ों का रोज़ा रखना ये मुसलमानों के लिए मसनून है और जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत की बशारत दी गई है।
अफजल तो ये है कि आप 9 और 10 का रोज़ा रखें और किसी वजह से 9 तारीख का रोज़ा छूट गया, उठे नहीं, भूल गए, तो 10 के साथ आप 11वीं तारीख को भी जोड़ लें ताकि 10 तारीख का रोज़ा सुन्नत के लिए और 11वीं तारीख का रोज़ा यहूदियों की मुखालफत के लिए, इस तरीके से जो है इस रोज़े से आप इस्तिफादा कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, नाम और सवाल बता दें। भाई मेरा सऊदी अरब से बात कर रहा है, नाम थोड़ा बाद में बताऊंगा, थोड़ा जरूरत का बात है, फरमाइए क्या शर्म का बात है। अच्छा बात है, सवाल क्या है भाई? हम तो शादी हो गया तो एक दिन गुस्सा से मैंने औरत छोड़ दिया थे, वो अब जॉइन कर सकता है ना नहीं कर सकता है, वही थोड़ा मामला में हम पूछ रहे हैं। अच्छा, आपने तलाक दे दी थी अपनी अहलिया को? हाँ, तलाक दे दिया। और क्या कहा था? तो अभी ये कोई तरीका है ज्वाइन करने का? जी भाई, वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा क्या था उस वक्त? वो एक मानी बातचीत से गुस्सा हो गया कि आप गुस्से तो हो गए, लेकिन आपने छोड़ा किस तरह था, क्या कहा था? वो थोड़ा प्रॉब्लम किया कि घर में। नहीं, मैं वजह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बीवी को क्या कह दिया था कि जाओ मैंने तुम्हें तलाक दे दी, या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या देता हूँ, क्या कहा था आपने भाई? वो तो तलाक तो दिया। अच्छा, तलाक बाद में वो रो रहा है को, बाद में हम काजी ऑफिस का पास गया। अच्छा, एक मतवा का पास। अच्छा, मतवा बोल रहा है तुम्हारा तो गलती हो गया, तो एक रास्ता है करने का, बोले तुम्हारा सजा होएगा, तौबा करो और इतना पैसा देना पड़ेगा। तो हम ये पैसा दे के तौबा उबा दोनों आदमी करके लेके आया। तो ये जायज है ना जायज नहीं है, ये हम पूछ रहे हैं। पैसा किसको दिया था भाई? मुतवा को? वो मुतवा को। ओहो, ये मुतवा कहाँ से पैसे लेने के हकदार बन गया? बहरहाल वो मुझे मैं उस पर जब तक डिटेल नाम मालूम हो कोई जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन अब ये बता दीजिए कि जब आपने तलाक दी थी उसके बाद आप उनको वापस ले आए थे, कितनी मुद्दत के बाद वापस लाए थे? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? ना, 1 महीना नहीं है, उसी दिन में एक दिन रात तो हम छुड़ा, एक दिन बाद में लिखे गया थोड़ा 10-12 माइल जगह बड़ो आलिम साहब का पास। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। वो भी इसका नाम है काजी साहब, वो काजी वही मामला में वही। ठीक है, अब बात वाजे हो गई है और अभी जवाब आ जाएगा भाई। नाम बताना चाहे तो आपकी मर्जी, नहीं बताना चाहते कोई मसला नहीं है, हम किसी के राज को आम नहीं करना चाहते। तो अभी आपको जवाब आ जाएगा और बहुत आपको मुबारक हो कि आपकी अहलिया आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेडियो पे जवाब सुन लीजिए। जी मौलाना। जैसे भाई बेशक मौसूफ के साथ जो परेशानी का मामला पेश आया, उसके बाद जो दोबारा खुशी की कैफियत हासिल हुई, इस पर यानी वाकई मुबारकबाद के काबिल है। जो बशारत आपने उनको माशाअल्लाह सुना दी, और मौसूफ का जो मामला है, इस मामले के हल के सिलसिले में हम मुस्लिम शरीफ की उस हदीस को याद करते हैं जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा प्यारे नबी की ज़िंदगी के अंदर ही मामला पेश आया। आपकी ज़िंदगी के दौरान के रुकाना नामी सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसके बाद मस्जिद में आकर गमगीन होकर बैठे रहे। नबी मोहतरम ने पूछा क्या बात है रुकाना? उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तब प्यारे नबी ने पूछा कैसी तलाक दी? कहा कि 3 तलाक़ें एक साथ दी। तब नबी मोहतरम ने कहा कि एक वक्त अगर 3 तलाक़ें तुमने दी तो एक ही तलाक के तौर पे वो तीनों तलाक़ें एक ही तलाक के तौर पे शुमार होंगी, जाओ अपनी बीवी को वापस ले लो। इस हदीस की रोशनी में अब भाई साहब जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने चाहे 1 तलाक दी हो या 3 अल्फाज कहे हो, हर हालत में एक ही तलाक उनकी तरफ से इस हदीस की रोशनी में वाज़ेह होता है कि 1 तलाक वाक़ई हुई। और उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर चूंकि मौसूफ ने अपनी बीवी को वापस लिया, 3 माह गुजरे नहीं बल्कि सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही वापस उन्होंने ले लिया। 1 तलाक तो सरजद हो चुकी, अब बाकी 2 तलाक़ें कभी भी अगर ज़िंदगी में दे तो फिर वो उनसे उस अपनी बीवी का जो रिश्ता है वो मुनक़ते हो सकता है। लेकिन चूंकि वापस ले लिया और दोनों भी इस बात पे अफसोस कर रहे हैं, तो आइंदा दोनों भी ऐसी गलती का इयादा न करें, ऐसी गलती को ना दोहराएं। और जहाँ तक किसी आलिम साहब के पास गए थे और आलिम साहब ने इस तरह बीवी को वापस पहुँचाने के लिए कोई फ़ीस मांगी है, तो फिर ये तो यानी उनकी तरफ से कोताही और गलती है। लेकिन सिर्फ कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए कि चलो तुमने वापस ले लिया, इसके बारे में गवाही के लिए हमारे पास कुछ फीस है बराए नाम, जैसे निकाह की फीस होती है, तो अलग बात है। वरना सिर्फ बीवी को वापस पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से फतवा देने के लिए अगर वो फीस मांग रहे हैं तो फिर ये तो उनके लिए जायज़ नहीं था। सही बात है, जज़ाकुमुल्लाह खैर मौलाना। और अगली कॉल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हाँ, मैं बरकतुल्लाह बोल रहा हूँ। जी बरकत भाई। जी, मेरे 2 सवाल हैं। फरमाइए। एक तो मैंने बेटी की शादी की थी और रुखसती के वक्त उसकी सास ने कहा कुरान शरीफ लाओ, उसके साए में रुखसती होगी। मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं, मेरी बेटी दुआओं के साए में जाए, क्या मैंने ठीक किया? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल भी सुन लें। फरमाइए। कुर्बानी अल्लाह के नाम पे करनी चाहिए। गाय के 7 हिस्से होते हैं, अगर मैं कुर्बानी कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये अल्लाह के नाम पे कुर्बानी हो रही है तो सही है या 7 आदमी के नाम लिए जाएंगे? अच्छा, 7 आदमी जो उसमें शरीक है उनके नाम लेना? हमारे घर वाले हैं, बस कोई और नहीं। अच्छा, अपने घर के अफराद की? अच्छी बात है, ठीक है, इंशाअल्लाह जी अभी जवाब आ जाएगा। बरकतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मानना, पहला सवाल, बेटी की रुखसती के वक्त सास ने कहा कि बेटी की सास ने कि कुरान पाक लेके आए, उसके साए में रुखसती होगी। इन्होंने कहा कि नहीं, दुआओं के साए में। जैसे भाई ऐसे अल्फाज चाहे कुरान मजीद का साया हो या दुआओं का साया हो, कुरान मजीद उन लोगों के लिए साया बनता है जो कुरान मजीद के हाफिज हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को साया बना के क़यामत के दिन पेश करेगा ताकि मैदान महशर में लोगों के लिए साया हासिल हो। और आमतौर पर इस्तिलाहन कहते हैं कि दुआएँ कोई ऐसी यानी फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, मादी चीज़ के लोगों को नजर आए, बल्कि इस्तिलाहन ये कहते हैं कि दुआओं के साए में रहते हैं, यानी अल्लाह ताला इन दुआओं के बदले में रहमत के जरिए साया करता है। मसलन ये सब मुरादी माने हैं, ये यानी हकीकी माने ये नहीं होते, बल्कि मुरादी माना इसमें लिया जाता है। जब आपने कहा कि दुआओं के साए में जाएगी, आप कुरान के मुनकिर नहीं हुए, और जब आपकी समझन ने कहा कि कुरान के साए में जाएगी, वो दुआओं की मुनकिर नहीं थी। इसमें सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। आप कुरान के मुनकिर नहीं है, दुआ करके आपने रुखसती की, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो कहना कि कुरान के साए में जाएगी, कुरान लाओ, ये तरीक़ा इस्लामी शरीयत में नहीं बताया गया है, बल्कि कुरान पे हमारा ईमान है। उस लड़की का, दुल्हन के वालिदैन का, दुल्हन की सास और ससुर सबका ईमान है, तो ये ईमान ही उसके लिए साया है। अलग से कुरान शरीफ लाकर पेश करना है कि उसके साए में उससे यानी रुखसती करो, यह तरीक़ा इस्लाम ने हमें नहीं बताया, इसकी ज़रूरत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और दूसरा सवाल, कुर्बानी के या गाय अगर वो कुर्बान कर रहे हैं तो उसमें घर के तमाम अफराद की तरफ से है, तो उन सब के नाम लेना ज़रूरी है या नहीं? जैसे सबसे पहली बात, इससे कबल जो प्रोग्राम्स थे उनमें आपने यानी लोगों को ये बात बताई कि कुर्बानी होती अल्लाह के नाम से और लोगों की तरफ से, यानी कोई भी शख्स अपनी तरफ से या अपने वालिदैन, बाल बच्चे या दोस्त अहबाब या जो भी साथी जिन्होंने रकम दी हो उनकी तरफ से की जाती है, और किसी भी इंसान के नाम पर कुर्बानी नहीं की जाती। तो यह बात वाज़ेह की गई। अब अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, हर वो जानवर जिस पर अल्लाह ताला का नाम ज़िबह करते वक्त लिया गया उसी में से खाओ। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और जिस जानवर के ज़िबह करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस जानवर का गोश्त मत खाओ। और उसके बाद जहाँ तक आप अपने घर वालों का नाम लेते हैं, इस बात के लिए कि आप उनकी तरफ से ये कुर्बानी कर रहे हैं, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। खुद आप जब जानवर ज़िबह करते, बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से और बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानवर को पकड़कर ज़िबह करते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। या अल्लाह, ये जानवर जिसकी कुर्बानी मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से, मेरे अहल अयाल की तरफ से और उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से, ये कहकर आप जानवर ज़िबह करते। तो इस तरीके से जिनकी तरफ से जानवर की कुर्बानी की जा रही है उनका नाम लेना अफजल है। लेकिन अगर आप दिल में नियत करते हैं, वो नियत भी उसके लिए काफ़ी है। यह हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, चूंकि आप कुर्बानी अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आपके पूरे के पूरे घर वाले उसमें खुद ब खुद शामिल होते हैं। प्यारे नबी ने जब बकरे को या गाय को ज़िबह किया, ये फरमाया कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व मिन आलि मोहम्मद। तो उस वक्त आपकी माशाअल्लाह जो अज़वाज मुतहरात थी, उम्महातुल मोमिनीन, उन सब के नाम आपने नहीं लिए, बल्कि ये कहा कि ये हज़रत मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद की जो घर वाले हैं, आपके घर वाले, उनकी तरफ से है। ये कहना ही आपने काफ़ी समझा, तो इतना भी कहना जो है वो काफ़ी है। उसकी वजह से इस बात की ताकीद हो जाती है कि किसकी तरफ से
سے ہے. عام طور پہ جب خیر یہ تو آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں, لیکن جب 7 مختلف افراد اپنی رقم دیتے ہیں, اب ان کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے, تو اس کا ثبوت جو ہے, نیت جو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ثبوت کے طور پہ جو ذبح کرتے ہیں وہ صاحب ان سب کا نام لیں, تاکہ ان کو اطمینان ہو کہ جس طرح انہوں نے رقم ادا کی ہے اسی طرح ان کی طرف سے جو نام لیا جا رہا ہے. تو قربانی میں یہ طریقہ زیادہ افضل ہوتا ہے ان کے اطمینان کے. اگر آپ نام لیتے ہیں تو بہتر ہے, کیونکہ پیارے نبی نے اپنی طرف سے نام لے کر قربانی کی تھی. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم ٹیلی فون کا سلسلہ یہاں پر روک لیتے ہیں اور دوسرے جو ذرائع ہمارے پاس سوالات کے ان کی طرف آتے ہیں. ہماری ایک بہن ہیں جنہوں نے نام میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے. ان کا سوال تھا کہ ایک خاتون ہے جو ان کے شوہر ان کو بہت پریشان رکھتے ہیں, اور اب پتہ یہ چلا ہے اس خاتون کو کہ یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کسی اور خاتون میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس خاتون سے. اور یہ جو ان کی پہلی اہلیہ ہیں, یہ ان کا کہنا یا ان کی طرف سے کہ چونکہ اب وہ پہلے ہی میرے ساتھ ان کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی تھیں, اب جب دوسری بیوی آ جائے گی پھر مجھے بالکل ہی وہ بھول جائیں گے, تو ایسے میں پھر مجھے ان سے طلاق لینی چاہیے. کیا یہ بات مناسب ہے؟ ان کو طلاق لینے کا حق ہے یا کہ صبر کرنا چاہیے؟ جی صاحبہ, اس بارے میں پہلی بات, استوصوا بالنساء خیرا, تم لوگوں کو چاہیے کہ خواتین کے ساتھ بھلا سلوک کرو, اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طرح خواتین کو چاہیے کہ شوہروں کا حق ادا کریں, اسی طرح شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے حقوق ادا کرے. تو یہ حقوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, اور اگر شوہر ان حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ذمہ دار اور گنہگار ہوگا. اسی طرح اگر بیوی بھی اپنے حقوق میں جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں, اگر ان میں کوتاہی کرتی ہے تو وہ اس پر اس کا محاسبہ ہوگا. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور پیارے نبی نے بھی تاکید کی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. یہ بات اپنی جگہ واضح ہے. اب موصوف بیوی کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں, جیسا کہ بہن صاحبہ نے بتایا ہے, واقعی وہ اس طرح کر رہے ہیں, اور جو حقوق مشروع ہیں, ثابت ہیں, اور جو ان کے طاقت میں, ان کے مقدور میں ہیں, اس کے باوجود وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں, ایسی صورت میں بے شک وہ پکڑے جائیں گے, ان کا محاسبہ ہوگا, گنہگار ہوں گے. ان کو چاہیے کہ توبہ کریں, استغفار کریں اور حقوق کی ادائیگی کا آغاز کریں. اور جہاں تک دوسری شادی کا معاملہ ہے, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے کہ اگر تم اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہو تو مثنا یا تو 2 یا 3 یا 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو, لیکن اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو یا پھر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو, ایسی صورت میں جو ہے فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم, ایک ہی بیوی پر تم لوگ اکتفا کرو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں تاکید کی گئی. اور اس کے بعد اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ شخص ان کے آپس میں عدل و انصاف نہ کرے تمام معاملات میں, ایسی صورت میں جو ہے قیامت کے دن وہ شخص اس طریقے سے آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا. تو لوگ اسے پہچانیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس قیامت کے دن شرمندہ ہو کر آ رہا ہے, جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا رہا. اب جو موصوفہ بہن صاحبہ ہیں ان کے پاس اختیار ہے. واقعی اگر جن کے بارے میں شکایت وہ کر رہی ہیں, شوہر کے بارے میں ان کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کریں گے, تو پھر اپنے بارے میں وہ سوچیں, لیکن پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر لینا کہ دوسری بیوی آنے کے بعد وہ اور بھی کوتاہی کریں گے, تو یہ شاید مناسب نہیں ہے. کیونکہ طلاق لینے کے بعد خواتین کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, یہ بات واضح ہے. اس اعتبار سے آپ یعنی کسی کے ذریعے موصوف کو بار بار یاد دہانی کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور دیکھیں کہ واقعی اطمینان کا معاملہ نہیں ہے اور بہت زیادہ اور بھی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں. اور دوسری شادی کے بعد یعنی شادی سے پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیں. اگر واقعی دوسری شادی وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے, اگر آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کوئی اور فیصلہ یا آپ کوئی طریقہ اپنائیں. جزاکم اللہ خیرن. اور کچھ سوالات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ لوگ آپس میں بحثیں کرتے ہیں اور ان بحثوں کی بنیاد پر پھر آگے اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں جیسے انداز کا عبد الکریم صاحب کا ایک سے زیادہ سوال تھا, لیکن اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں, یہ سوال ان کی طرف سے آیا.
جسے بھائی پہلی بات قبر میں کون کس حالت میں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ جو انسان کی زندگی وفات تک جو ہوتی ہے وہاں تک عام طور پہ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں. وفات کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ بتائے یا اللہ کے نبی ہمیں بتائے، تبھی ہم ان باتوں سے واقف ہو سکتے ہیں. اور چونکہ کہیں بھی اللہ نے یا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ پیارے نبی اپنی قبر میں آگے چل کر زندہ رہنے والے ہیں، یا پھر کسی نے کوئی شخص نے جا کر آ کے نہیں دیکھا کہ چلو ہم نے نبی کو دیکھا ہوا ہے، آپ بقید حیات ہیں، اس طرح ہم نے دیکھا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اسی لیے جو بات غیب سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. جہاں تک زندگی کا معاملہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یعنی جو انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ مختصر اور عارضی ہے، اور حقیقی دائمی زندگی آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دیا تو وفات کے بعد بھی انسان کی زندگی جاری رہتی ہے، لیکن وہ جو زندگی ہوتی آخرت کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم اتنی ہی حد تک بات کریں گے جو باتیں ہمیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کو قبر میں آرام ملتا ہے اور برے لوگوں کو قبر میں بھی سزائیں دی جاتی ہیں. تو مرنے کے بعد صرف نبی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ فرعون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرعون کو جو ہے جہنم کی آگ میں اسے پیش کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو آرام ملنا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کافر اور مجرمین اور گنہگار ہیں ان کو سزا ملنا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ کیفیت کیسے ہوگی، کہاں پہ ہوگی، ہم اس بات کو نہیں جانتے. برزخ میں سب معاملات ہونے والے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پیارے نبی دنیا کی طرح ہی قبر میں کھاتے اور پیتے اور مباشرت کرتے رہتے ہیں، تو ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسی من گھڑت باتیں اسلام میں یا مسلمانوں کے درمیان پھیلانا یہ جائز نہیں ہے. اور انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک مسلمانوں کو آخرت کی جو روزی ملے گی وہ دنیا کی روزی سے بہتر ہے. جب نبی محترم دنیا کی روزی سے، دنیا کی زندگی سے فارغ ہو چکی، پھر وہاں کہنا کہ وہاں پر بھی پیارے نبی کو دنیا کی روٹی، دنیا کا پانی مل رہا ہے، تو حقیقت میں پیارے نبی کے مقام کو بڑھانے کی بات نہیں بلکہ گھٹانے کی بات ہے. پیارے نبی اب آخرت کی زندگی کے مستحق بن چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں. دنیا میں کبھی روٹی کھاتے، کبھی بھوکے رہتے، اور کچھ نہیں ملتا تو نفل روزے کی نیت کر لیتے، یہ حالت آپ کی تھی. تو آخرت کے بارے میں یہ کہنا کہ دنیا کی طرح پیارے نبی کا کھانا پینا تھا، تو یہ پیارے نبی کا احترام نہیں بلکہ بے حرمتی کر رہے ہیں. پیارے نبی کے مقام کے مطابق آخرت کی غذا پیارے نبی کو مل رہی ہوگی، اور یہی ہماری امید ہے. جزاکم اللہ خیر. بس میں کافی عرصہ ہوا ہمارے وہ جن کا بھی اب ذکر کر رہے تھے مولانا اسحاق صاحب، ان کا ایک لیکچر تھا وہ سنا تھا. انہوں نے جو بات، اب چونکہ دیر ہو گئی تو اس لیے میں تھوڑا سا تعامل کروں گا. اس میں دو باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے کہی تھی اس طرح کے سوال کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ لوگوں تم درود بھیجا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ جو فرد جس وقت بھی وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے لا کے پہنچاتے ہیں، اور میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں، یا یہ کہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اس وقت فوت ہو چکے ہوں گے تو اب کیسے پھر آپ کو پہنچاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین کی مٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کی ان کے ابدان کو یا ان کے بدن کو نہیں کھائے گی، ان کے بدن سلامت ہے. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی کہ روح واپس کی جاتی ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ تم فلاں بندے فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، تو آپ پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے اس روایت کا حوالہ لیا، اس میں کہا کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندہ ہیں. دوسرا معراج کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے جو واقعات بہت سارے بیان کیے، اس میں ایک یہ بھی روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انبیاء کا قبر میں اس طرح ان کا زندہ ہے تو پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن کیا وہ زندگی جس طرح ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، اس زندگی کی طرح ہے؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس زندگی کے کچھ مناظر، جو دو مناظر
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं उस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है। जब अल्लाह के रसूल का, अब उसको अगर कोई कहता है कि वो वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर दुरूद भेजा जा रहा है, वो उसको जवाब दे रहे हैं, तो ये जिंदा है, ठीक है, इस रात से जिंदा है, हम उसको कहते जिंदा है। लेकिन अगर वो कहें कि जो हमारी बात सुनेंगे और फिर हमारे सवाल जब आप उनसे कहें कि या अल्लाह या रसूलल्लाह वो हमारे लिए फलां ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो इसकी कोई दलील नहीं है, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। जिससे अभी बात वाज़ेह है जी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर मौलाना। अच्छा, अब्दुल करीम साहब का दूसरा सवाल था कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आसमान पर कबूल हुई थी या ज़मीन पर? जैसे भाई इस बारे में भी जब हम सूरह बकरा और सूरह आराफ की जो आयत हैं उन पे गौर करते हैं, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद यानी दुआ या कलिमात और तौबा के जो कलिमात हैं अल्लाह ताला ने उन कलिमात को सिखाया और आदम और हव्वा ने इन कलिमात को इस्तेमाल करते हुए तौबा की और अल्लाह ताला ने उन दोनों की तौबा को कबूल किया। अब तौबा कबूल करने के यानी जो तौबा कबूल करने की जो बात हमें मिलती है उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने भी फरमाया नहबितु मिन्हा जमीआ, कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, जन्नत से निकल पड़ो। क्या अल्लाह ताला ने जब ये नाराज़गी का इजहार किया उसके फौरी बाद उन्होंने तौबा की या ज़मीन पर उतारने के बाद उन्होंने तौबा की? चूँकि इसके बारे में ज़िक्र नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो वाज़ेह बात यह है कि कलिमात का आगाज़ जन्नत से हुआ और उसके बाद उन कलिमात को दुनिया में भी दोहराते रहे। लेकिन इस मौके पर यह बात भी है कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को दुनिया के लिए ही पैदा किया और आखिरी मरहला जन्नत का है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अल्लाह ताला ने आदम के बारे में फरमाया फरिश्तों के सामने कि मैं खलीफा जो है दुनिया में और ज़मीन पर बनाना चाहता हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बसाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसके बाद तौबा का आगाज़ जन्नत से हुआ और तौबा की कबूलियत ज़मीन पे हुई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद इरफान साहब का सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने का यानी स्लीपिंग का तरीका क्या था? जैसे अब इस सिलसिले में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपके तरीक़े आपकी तरफ से बताए हुए जो मुख्तलिफ आदाब हैं उनको उलमा ने कई किताबों में जमा किया है और ये आदाब मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे बुखारी में हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि जब प्यारे नबी सोने के लिए जाते तो आप ये दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उसी तरह हुज़ैफ़ा ही से यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मरवी है, जब आप बेदार होते तो इस तरह फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अगर आप इन दुआओं को पढ़ के सोते हैं इस पर अजर मिलेगा, वरना अगर कोई शख्स सोता है तो सोना इंसान जानवर गैर मुस्लिम सब सोते हैं, लेकिन जब आप शरीयत के मुताबिक सोते हैं तो इस पर खुसूसी अजर आपको मिलेगा। और बुखारी में बारा बिन आजिब से प्यारे नबी की ये सुन्नत मज़कूर है कि नबी महतरम जब बिस्तर पे लेटते तो दाहिने पहलू पे लेटते और अपना जो दाहिना हाथ होता वो अपनी गाल के नीचे रखते हुए यानी अपने सर के नीचे रखते हुए आप जो है सो जाते और उसके बाद आप ये दुआ पढ़ते कि अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वस्तु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत व नबिय्यिका अल्लज़ी अरसलत। दुआ तो बड़ी लंबी है, अगर याद हो तो आप पढ़ें, अगर याद नहीं है तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगर याद नहीं है तो मुख्तसर दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इस पर भी आप इक्तिफा कर सकते हैं। और बुखारी ही में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुअव्विज़ात यानी वो कुरान की वो सूरतें जिनको पढ़कर प्यारे नबी अल्लाह की पनाह मांगा करते थे वो पढ़कर सोया करते थे। और इनकी तफसील जो है मुस्नद अहमद और इब्न खुज़ैमा और इब्न हिब्बान में उक़बा बिन आमिर से मरवी है कि प्यारे नबी ने 3 सूरतों का नाम लिया, कुल वल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और उसके बाद आपने फरमाया तअव्वज़ बिहिन्ना फ़इन्नहु लम युतअव्वज़ बिमिस्लिहिन्ना। इन सूरतों के ज़रिए तुम अल्लाह ताला की पनाह मांगो और इनके ज़रिए जो पनाह हासिल होगी किसी और सूरत से तुमको हासिल नहीं होगी। और उसके बाद प्यारे नबी मुअव्विज़ात को नमाज़ों के बाद भी पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से ये जो कुछ आदाब अहादीस में मिलते हैं आपके सामने पेश किए गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद जाफ़र अली साहब फरमाते हैं कि इस्लाम में है कि जुमे की 3 नमाज़ें छोड़ने वाले का नाम मुसलमानों की लिस्ट से निकाल दिया जाता है।
میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں, مجھے جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں ملتی, تو میں اکثر جمعے کے دن اپنی ڈیوٹی یعنی لوکیشن پر ہی ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہوں. ڈیوٹی کی وجہ سے میری جمعے کی نماز مس ہو جاتی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی صاحب بھائی, نماز جمعہ کی فضیلت احادیث میں وارد ہے, اور چونکہ موصوف کا سوال فضیلت سے ہٹ کے صرف جمعہ چھوٹنے کے بارے میں ہے, اس لیے ہم فضائل کے بارے میں زیادہ اس وقت زور نہیں دے سکتے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کسی بھی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے پہنچے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, پیارے نبی متنبع فرماتے ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں, ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے اور آگے چل کر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا جو ابو داود وغیرہ میں ابو الجعد نامی صحابی سے مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اور متہاوناً بہا یعنی ان کے بارے میں سستی کرتے ہوئے, لاپرواہی کرتے ہوئے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دے گا. اور اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ من غیر ضرورت, اور ایک حدیث میں ہے من غیر عذر, ایک حدیث میں ہے 3 مرات متوالیات. اگر کوئی شخص مسلسل 3 جمعے چھوڑتا ہے, اس کے بارے میں سزا ہے کہ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی. اور ایک روایت ہے جو جس کے بارے میں بتایا گیا کہ من ترک الجمعۃ 3 جمعا فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ, ایسے شخص نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا. سختی کے ساتھ یعنی جمعہ کے بارے میں تاکید آئی ہے. تو علماء کی تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ فیض القدیر میں مکتوب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے بغیر عذر کے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی, اور ایسا دل اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانیوں سے محروم ہوگا. اس کے دل میں جہالت اور سختی اور تنگی اور غفلت, یہ سب چیزیں جو ہے یہ جو غیر مناسب چیزیں اس کے دل میں بھر دی جائیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہوگا, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ بندہ گنہگار ہوگا. لیکن عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا اگر جمعہ کی نماز کو ناپسند کرتے ہوئے ناراضگی سے چھوڑتا ہے, چلو ایک غیر ضروری چیز ہے, ایسا شخص جو کافر ہوگا. لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے, ایسا شخص جو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں. عذر نہیں ہے تو گناہ کبیرہ اس سے لاحق ہوگا. اگر عذر ہے اس کے بارے میں پھر علماء نے جو تحقیق پیش کی اس کے بارے میں غور کریں گے کہ جو عذر اور مجبوری ہے, اتنی سخت مجبوری ہے کہ وہ جمعہ کے لیے آ ہی نہیں سکتا, جیسے سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہیں, ان کے بارے میں ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. بعض مقامات پر سیکورٹی گارڈز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے, اگر وہاں سے ہٹ جائیں گے تو جو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہاں پر خطرناک نقصانات لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے عذر ہے, ان کے پاس مجبوری ہے. ایسے لوگ جو اگر جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن موصوف کے بارے میں یہ بات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہو سکے تو ڈیوٹی تبدیل کر لیں, کہ بہت سارے مسلمان بھی اور کچھ غیر مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے وہ بھی اس موقع پر رہتے ہیں, یعنی اس کام کے سلسلے میں آپ ڈیوٹی تبدیل کر لیں, اور جو جمعہ کے دن کا معاملہ ہے تو آپ دن کے بجائے رات کی ڈیوٹی آپ لے لیجئے, یا پھر ایک جمعہ اگر چھوٹ گیا تو دوسرا جمعہ جو ہے آپ کسی اور کی ڈیوٹی کے لیے آپ اپنے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے پاس بات پیش کریں. اور آخری بات یہ بھی اس سلسلے میں ہو سکتی ہے کہ مسلسل جمعہ چھوڑنے کے بجائے آپ جس مقام پہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی مقام پر آپ قریب کے 1-2 ساتھیوں کو بلا لیں, ان کے ساتھ مل کر آپ جو ہے جمعہ کی طرح نماز آپ ادا کر لیں. مثال کے طور پہ جو ہے آپ جمعہ کا خطبہ آپ مختصر دیجئے اسی مقام پہ, ان سے ذمہ دار حضرات سے اجازت لے کر کہ وہاں پر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قل واللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں اور کچھ نصیحت کی باتیں کریں, اور اس کے بعد جمعہ کی نماز آپ پڑھیں. تو کوئی نہ کوئی راستہ آپ نکالیں. مجبوری کی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ بھی اگر جمعہ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس پر بھی توبہ و استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر جمعہ باقاعدہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ابو ہریرہ سلفی صاحب کے سوال کے حوالے سے ہم نے گزشتہ حلقے میں اشارہ کر دیا تھا کہ اس طرح کے سوالات ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے کہ جس میں انہوں نے نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں, اور لوگ مختلف چیزیں کرتے ہیں اور کئی لوگ نہیں کرتے ہیں. اب اختلافی مسائل جو بھی ہیں اس طرح کے وہ پھر بہت ایک حلقات شاید اس کے لیے کافی نہ ہو پورا, تو اس لیے ان کے دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں.
ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا پیسوں کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ مثلا ہمارے پاس نیپال بارڈر پر ایک شاپ ہے، انڈین پیسوں کو نیپالی روپیز کر کے جس کو نیپالی چاہیے وہ نیپالی لے لے اور جس کو انڈین چاہیے وہ انڈین لے لے، اور ہم 100 میں سے 2 پیسے لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس سے بھائی اس طریقے سے جو کرنسی کا بیچنا اور کرنسی کا خریدنا، اس بارے میں علماء نے جب غور کیا دلائل کی روشنی میں، تو خاص طور پہ جو ابن باز وغیرہ اور جو فتویٰ کی کمیٹی ہے لجنہ دائمہ، ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ کرنسی بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کمیشن لیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ جو ہے بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح آپ نہ کریں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور اس سلسلے میں دوسری بات جو ہے، آپ اس بارے میں توجہ دیں کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ اور تیسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے جو آپ سے کوئی کرنسی لینے کے لیے آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ چونکہ یہ بیچارہ آ کے پھنس گیا ہے جتنا چاہے اس سے لوٹو، ایسا نہ ہو۔ اور آپ کا جو اس سلسلے میں جو آپ رقم لے کر ایک ملک کی کرنسی لے کر دوسرے ملک کی کرنسی آپ اس کو دیتے ہیں، اس میں کمیشن کے طور پہ آپ لیتے ہیں، اس میں آپ کا منافع کتنا ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں، وہ سب مکمل ہونے کے بعد جو رقم زیادہ سے زیادہ اس کو مل سکتی ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہوں نے لکھا ہے 100 میں سے 2 پیسے لیتے ہیں، تو مناسب ہی لگتا ہے۔ جی سر بالکل، کچھ مقامات پہ اور بھی زیادہ لے لیتے ہیں، 4 بھی۔ جی ہاں، تو 2 ٹھیک لگ رہا ہے سر بھائی۔ تو ابو ہریرہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے مال کاروبار میں برکت دے۔ محمد عرفان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلم نے جو کہ ہندو ہیں، انہوں نے مٹھائی دی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کس خوشی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوالی کی خوشی میں۔ تو یہ مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جس سے میں اس سلسلے میں جو علماء نے تحقیقات پیش کی ہیں، ان تحقیقات کی گہرائی میں جانے سے پہلے سورہ ممتحنہ کی جو آیت ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین، کہ جو لوگ دین کے معاملے میں تم لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے اور تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یا ان کے ساتھ انصاف کرنا، ایسے بھلے کاموں سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر مختلف احادیث مروی ہیں، خود بخاری رحمہ اللہ یہ چاپٹر بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے تحفے تحائف وغیرہ قبول کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ مشہور محقق اپنی کتاب جو ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کا اردو ترجمہ راہ حق تقاضے، اس کتاب میں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ اگر غیر مسلموں کی طرف سے جو تحفے تحائف آتے ہیں، عام دنوں میں اگر تحفے ملے تو کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں، اور ان کا کوئی فیسٹیول ہے اس موقع پر اگر کوئی تحفے آتے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، جو مجوسیوں کی طرف سے نیروز نامی فیسٹیول ان کا ہوتا تھا، اس موقع پر تحفے آتے تو وہ قبول کر لیتے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ مجوسیوں کے فیسٹیول کے موقع پر تحفے آتے ہیں تو کیا ہم ان کو لے سکتے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ اگر وہ لوگ اس فیسٹیول کے موقع پر جانور ذبح کر کے لاتے ہیں تو اس کو تو مت لو، ان کے علاوہ ان کے درختوں کے میوے وغیرہ لا کر دیتے ہیں تو ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو یہاں کے قطر کا جو اسلام ویب ہے، جو صاحب بھائی جو ویب سائٹ ہے، ان علماء کی طرف سے بات یہ ہے آپ ان کی عیدوں میں شرکت نہ کریں، اس عید کو مناتے وقت آپ وہاں پہ حاضر نہ رہیں، ان کی عیدوں کی تصدیق نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ جو عید کر رہے ہیں وہ دین جو ہے سچا ہے، اس کے بغیر اگر آپ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک گوشت کی بات ہے، اگر وہ لوگ اس موقع پر کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت لاتے ہیں تو چونکہ وہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا معاملہ ہے، آپ اس کو مت لیجئے۔ اس موقع پر شراب یا بت یا صلیب وغیرہ کی کوئی چیز ایسی غلط تصویر آپ کے پاس تحفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اسے مت لیجئے۔ تیسرے نمبر پر مٹھائی ہی کیوں نہ ہو یا پھل فروٹ وغیرہ کسی مندر وغیرہ میں بت کے سامنے پیش کر کے تبرک کے طور پہ پھر اس کے بعد وہ آپ کو لا کے دیتے ہیں تو پھر اس کو بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے بچتے ہوئے کوئی چیز باہر سے لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے حوالے وہ چیز کی ہے، اس کا تعلق جو ہے غیر اللہ کی رضامندی کے لیے پیش کرنے کا نہیں ہے، تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل
है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब आखिर खुलासा यह है, अगर कोई ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो आप मत लीजिए, लेकिन ऐसा मामला आपके सामने पेश आ गया तो उलमा ने जो तहकीक पेश की उसे आप लेके इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इरफान साहब अपने दूसरे सवाल में फरमाते हैं कि मुझे कतर में 2 साल आए हुए होने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा, जो 2 हफ्तों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और फिर कुछ लोग अलग नियत करके फ़र्ज़ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनता हूँ और रिकॉर्ड भी करता हूँ। मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा जमात से पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है? जैसे इस सिलसिले में सही मुस्लिम की वह हदीस जिसमें बताया गया कि एक नाबीना सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ये अपना उज़्र पेश करते हैं कि मेरे पास ये नाबीना होने का उज़्र है, घर दूर है और रास्ते में नहर है, कांटेदार दरख्त हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, काटने वाले कुत्ते दरिंदे आते हैं। ऐसी सूरत में क्या मेरे पास जो मजबूरी है इसकी वजह से मैं, बल्कि मजबूरियाँ हैं इनकी वजह से क्या मैं नमाज बाजमात के बजाय घर पे तन्हा नमाज पढ़ लूँ? तो प्यारे नबी ने शुरू में तो कहा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने फरमाया कि तुम जब अजान सुनते हो तो लाजिमन तुमको चाहिए कि बाजमात नमाज पढ़ो। इस हदीस की रोशनी में और दीगर जो रिवायात है, उन जो सही रिवायात है उनकी रोशनी में उलमा ने जो तहकीक पेश की है कि नमाज बाजमात जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनके सिलसिले में उलमा की जो तहकीक है, बाज़ उलमा ने इसे फ़र्ज़ किफ़ाया और बाज़ उलमा ने इसे वाजिब, बाज़ उलमा ने सुन्नत मुअक्कदा और बाज़ उलमा ने इसे फ़र्ज़ ऐन भी करार दिया है। ये तो हो गई पहली बात। और उसके बाद जो फजीलत आई है कि बाजमात नमाज का सवाब जो है तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जे ज़्यादा होता है। 2 बातें हो गई। और इन तमाम रिवायत की रोशनी में ये कहना कि नमाज बाजमात या बल्कि फ़र्ज़ नमाज में जमात से शामिल होना ये ज़रूरी नहीं है, तो उनका ये कहना मुनासिब नहीं है। और ज़रूरी नहीं का मतलब ये कि अगर मजबूरी पेश आई, अगर वो बंदा घर पे है और जमात को पहुंच नहीं सका तो उज़्र है। मजबूरी के यानी ज़रूरी नहीं कि जो अल्फाज हैं वो हकीकत में प्यारे नबी की अहादीस के साथ बेअदबी और गुस्ताखी पे दलालत करते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि मजबूरी में घर में अगर पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है, ये कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये लफ्ज़ कहना जो है ये इस्लामी शरीयत के साथ एक गुस्ताखी है। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, चलो ठीक है उनके पास कोई मजबूरी थी, लेकिन जब एक जमात मस्जिद में हो रही है उसी वक्त एक दूसरी जमात कायम करना या फिर एक फ़र्ज़ होते वक्त दूसरी फ़र्ज़ का आगाज़ कर देना, इसके बारे में तमाम उलमा का इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि यह क़तअन हराम है, जायज़ नहीं है, ये गुनाह है, ये इस्लाम के अंदर तफ़रक़ा है और फितना और फसाद है। एक तरफ जमात नमाज बाजमात हो रही है, फिर उसके बाद उस शख्स जो है पीछे अलग से जमात बनाकर या तन्हा नमाज पढ़े और ये कहे कि मैं फ़र्ज़ अलग से पढ़ रहा हूँ, ये जायज़ नहीं है। उसके अलावा अगर एक जमात हो चुकी, दूसरी जमात अगर कोई शख्स बनाना चाहे तो इसके बारे में इजाज़त है। मुस्नद अहमद में मज़कूर है अबू सईद खुदरी से कि एक दफ़ा प्यारे नबी ने नमाज पढ़ा दी, उसके बाद एक सहाबी देर से आए। प्यारे नबी ने कहा कि भी इनको नमाज बाजमात का सवाब मिलने के लिए इनकी मदद कौन करेंगे? एक सहाबी खड़े हुए और उन दोनों ने मिलकर नमाज बाजमात अदा की। इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। और उसके बाद दूसरी बात इस सिलसिले में सैयद भाई ये है कि अगर यानी ये साहब समझ रहे हैं कि यानी वो दूसरे साहब जो पढ़ रहे हैं वो फ़र्ज़ है, लेकिन पता नहीं है कि जो साहब जो अलग से नमाज पढ़ रहे हैं कि फ़र्ज़ थी सुन्नत थी। अगर वो चाहे फ़र्ज़ व सुन्नत हो, हर हालत में प्यारे नबी की तरफ से हुक्म यह है, मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है कि इरशाद नबवी इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलाता इल्लल मक्तूबा, कि जब एक नमाज फ़र्ज़ बाजमात शुरू हो चुकी दूसरी कोई नमाज उस वक्त नहीं अदा की जा सकती, यानी वह ना तो कबूल होगी बल्कि वह बंदा गुनहगार होगा। और उसके बाद तिरमिज़ी में हज़रत जाबिर से मरवी है, प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा अता अहदुकुमुस्सलात वल इमाम अला हालिन फलयस्ना कमा यस्नउल इमाम, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए आता है और उसके बाद यानी इमाम को जिस हालत में पाए उसी हालत में उसे चाहिए कि शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, आपने मुफस्सल जवाब से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सामने इसके साथ ही प्रोग्राम नूर इस्लाम का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा। और इस हफ्ते के दौरान बांग्लादेश की एक अजीम शख्सियत भी अल्लाह को प्यारी हो गई, प्रोफेसर गुलाम आज़म साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन्हें
जन्नत में आला मकाम से नवाजे, उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं। एक मुजाहिद थे, एक आलिम दीन थे, मुजाहिद थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम के लिए गुजारी। अल्लाह ताला उनकी इस पूरे अमल को कबूल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक से नवाजे। अगली मुलाकात तक के लिए मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल-उमरी और सैफुर रहमान दोनों आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।